we really need to know why Jesus came. तो हमें सच में जानना जरूरी है कि यीशु मसीह आया क्यों? Because if you don't know why Jesus came, you will believe in a diluted gospel which is all about heaven or hell. क्योंकि अगर आप यीशु मसीह को नहीं क्यों आया नहीं जानेंगे तो आप एक बहुत ही मिलावटी और फीके से सुसमाचार को ग्रहण करेंगे जो सारा स्वर्ग और नरक के बारे में है। The Bible doesn't say God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever will believe in him will go to heaven. बाइबल ये नहीं कहती कि परमेश्वर ने जगत से अच्छा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा भेज दिया कि जो कोई विश्वास करे वो स्वर्ग जाए। Come on, talk to me somebody. कोई बात करो मुझसे। Yeah? What did the Bible say? Bible क्या कहती है? says that God sent his son so that we can have something and not have it in future, have it now. Now. बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर अपना बेटे को इसलिए भेजा कि हमें कुछ मिल जाए, भविष्य में मिल जाए नहीं लेकिन अब मिल जाए इसलिए। Amen. God sent Jesus because he wanted to give you something that Jesus has. परमेश्वर ने यीशु को इसलिए भेजा क्योंकि यीशु आपको कुछ ऐसा देना चाहता था जो उसके खुद के पास है। So receiving Jesus is not about going to a place. Receiving salvation is about possessing something that Jesus had. यीशु को ग्रहण करना किसी जगह जाने के बारे में नहीं है, यीशु को ग्रहण करना वो विरासत पाने के बारे में है जो यीशु की है। Amen. And he says they will have what? Eternal life. और उसने कहा क्या मिल जाएगा उनको? अनंत जीवन, Everlasting life. अनंत का जीवन, Zoe life. ज़ोए जीवन, Zoe life. ज़ोए जीवन। The Bible calls it Zoe life. And you know what Zoe life means? It means God's own life. बाइबल उसको ज़ोए जीवन कहती है और ज़ोए जीवन का अर्थ आप जानते हैं, ज़ोए जीवन का अर्थ है परमेश्वर स्वयं का जो जीवन है वो। If I have to say it this way, God sent Jesus so that you can experience the same life that God is experiencing right now. अगर मुझे कहना हो तो मैं ऐसे कहूंगा कि परमेश्वर ने यीशु को इसलिए भेजा ताकि आप उस ही जीवन का अनुभव करें जो परमेश्वर इस समय कर रहा है। Amen. And majority of people think that eternal life is all about going to heaven. और अधिकतर लोग ये सोच बैठे हैं कि अनंत जीवन स्वर्ग जाने के बारे में है। Oh, have you found eternal life? तो आपको अनंत जीवन मिल गया? Yes. हाँ, मुझे मिल गया। So brother, तो भाई, we will live as a worm on this earth. एक कीड़े की तरह यहाँ पे जिएंगे, Defeated, हारा हुआ जीवन beat जिएंगे, down, पिटे हुए, depressed, because one day निराश होकर, क्योंकि एक दिन we will live victorious in heaven. हम स्वर्ग में जयवंत जिएंगे। Now that's a false gospel that you have heard till now. ये एक झूठा सुसमाचार है जो आपने आज तक सुना होगा। The Bible says, "Whosoever is born of God overcomes this world." Not in heaven, they overcome this world. Right now, where you are, if you are born of God, you're going to overcome wherever you are. बाइबल कहती है जो परमेश्वर से जन्म लेता है वो इस दुनिया पर जय पाता है, स्वर्ग की दुनिया में नहीं, इस दुनिया पर इस समय जहां आप हैं, जहां कहीं आप हैं वहां पर आप जय पाएंगे। Amen. The quality of the sons of God is that they are born overcomers. परमेश्वर के पुत्रों की खास बात ये है कि वो पैदा ही जयवंत हुए हैं। The DNA to overcome everything that comes against you is in your spirit man right now. आपके विरोध में आने वाली हर एक बात को हरा देना आपके वजूद में ही है। Amen. But majority of believers have it, but they don't know it. अधिकतर सभी विश्वासियों के पास ये क्षमता, ये जय है, लेकिन उनको पता नहीं है। Right? So, imagine I have a microwave. For example, somebody gifted me a microwave. उदाहरण के लिए मुझे किसी ने माइक्रोवेव गिफ्ट किया And I say, और मैंने कहा one day एक दिन I'm gonna use the microwave. मैं उस माइक्रोवेव का इस्तेमाल करूंगा। One day एक दिन I'm gonna bake a cake. मैं उसमें केक बनाऊंगा। One day एक दिन eternal life starts now. अनंत जीवन अब शुरू होता है। Zoe life
starts now. जोई जीवन अब शुरू होता है। There is no overcoming to do in heaven. स्वर्ग में कुछ हराने को नहीं बचा। There is no cancer in heaven. स्वर्ग में कैंसर नहीं There is है, no diabetes in heaven. कोई डायबिटीज नहीं है There is स्वर्ग no में, anxiety in heaven. कोई परेशान नहीं बैठा, No panic attacks in heaven. कोई एक्सीडेंट नहीं है वहां पे। But God says, my children who are born of me, they are going to overcome this world. लेकिन बाइबल ये कहती है मेरे बच्चे जो मुझसे पैदा हुए हैं वो इस दुनिया पर जय पाएंगे। But the problem is, पर समस्या ये we है, don't believe what our father says. We believe what the famous teaching says. हम वो नहीं मानते जो हमारे पिता ने कहा है, हम वो मानते हैं जो लोग प्रसिद्ध शिक्षाएं सिखाती हैं। But pastor, लेकिन पास्टर जी, we are mere humans. हम तो सिर्फ इंसान हैं। If we are humans, अगर हम इंसान हैं then it's okay. Sometime up, sometime down. तो ये तो लगा ही रहेगा, कभी हम अच्छा जीवन जी रहे हैं, कभी उतना अच्छा नहीं है जीवन, कभी Sometime green pastures, sometime wilderness. कभी कभी हरी चराइयाँ, कभी कभी रेगिस्तान में, मरुस्थल में। Sometime God loves us, sometime He slaps us. कभी कभी परमेश्वर प्यार करता है, कभी बहुत मारता है। Say, Holy Spirit, बोले पवित्र आत्मा, open my eyes मेरी आंखों को खोलें to what I have कि जो मुझे मिल गया है in वो my मैं जान- spirit. मेरी आत्मा में। You know, Apostle Paul never prayed, God, give them more power, more anointing, more this and more that. He said, God, open their eyes so that they may know what they already have received in their spirit man. पौलुस प्रेरित जब प्रार्थना कर रहे थे कलीसिया के, उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रभु इनको और अभिषेक और सामर्थ्य और ताकत से भर दो। उसने कहा प्रभु इनकी आंखें खोल दो ताकि इनको पता लग जाए कि आपने इनको क्या दे दिया है। Right? That's why we see God as an anointing vending machine. इसलिए कई लोग परमेश्वर को अनॉइंटिंग निकालने वाली मशीन समझते हैं। Seen coffee vending machine? Right? आपने कॉफी वेंडिंग मशीन देखी है जिसमें से कॉफी निकलती है? I have a good news to tell you. मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर Your है आपके लिए। heavenly Father आप- is not withholding anything from you. आपका स्वर्गीय पिता आपसे कुछ भी रोक कर नहीं बैठा हुआ। Forget about healing, promotion, blessing. He gave you the very essence what makes him God to you. चंगाई, प्रमोशन, आशीषें वो सब भूल जाओ, वो तो बात की बात है। जो बात परमेश्वर को परमेश्वर बनाती है उसने वो आपको दे दी है। Are you getting what I'm saying? Oh, if we would only know how generous, how liberal he is. काश कि हमें ये पता होता कि हमारा पिता कितना उदार है, कितनी मुफ्त में वो देता है सब कुछ। Let's see something from the scriptures, okay? वचन से कुछ देखते हैं। And I pray in this church, let the scriptures be your highest authority. और मेरी ये प्रार्थना है कि इस कलीसिया में वचन आपके जिंदगी का सबसे बड़ा अधिकारी ठहरे। All right, Genesis 1:25 we'll read from the NLT version. उत्पत्ति 1 उसका 25। God made all sorts of wild animals, livestock and small animals, each able to produce offspring of the same kind, and God saw that it was what? Good. इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। Right? So God, His master plan is that everything that He's producing should be able to produce of its own kind. सो परमेश्वर का जो महाप्लान महायोजना है वो ये है कि जो कुछ वो बनाता है वो अपने अनुसार बच्चे पैदा कर सके या बना सके। Think about that. Everything living, see, dead will not be able to produce after its own kind, but if anything we call living will always produce of its own kind. और खुद देख लीजिए, जो कुछ मरा हुआ है वो अपने स्वरूप में कुछ उत्पन्न नहीं करता, लेकिन जो कुछ जीवित है वो अपने स्वरूप में कुछ उत्पन्न करता है। Amen? Although God saw, man, these trees, these plants, livestock, everything is amazing, जो कुछ परमेश्वर ने बनाया देखा बहुत अच्छा है, but He was about to create a masterpiece. लेकिन वो एक मास्टरपीस बनाने वाला था। Because
as according to the plan, everything living produces of its own kind. God is living. He was about to produce something of its own kind. प्लान के अनुसार परमेश्वर ने सब कुछ जीवित बनाया था जो अपने स्वरूप में कुछ पैदा कर सके। अब परमेश्वर अपने समान अपने स्वरूप में कुछ जीवित बनाने वाला था। See, that's the problem. और यही The way समस्या है। gospel is, you are a sinner saved by grace is not the gospel. समस्या ये है कि जो सुसमाचार सुनाया गया है कि तुम पापी हो, तुम्हें अनुग्रह से उद्धार मिला है, ये पूरा सुसमाचार नहीं है। No, sir. जी नहीं। Whoever made that gospel didn't read Genesis chapter 1. जिस किसी ने ये सुसमाचार सुनाया था उसने उत्पत्ति का पहला अध्याय नहीं पढ़ा था। Don't start the story after the fall. Ask them, who were we before the fall? कहानी मनुष्य के पाप में गिरने के बाद शुरू मत करो, उनसे ये पूछो कि जब मनुष्य गिरा उससे पहले वो कौन था। We were God kind who became sinners, but Jesus came so that again He may restore us and make us what? God kind. हम परमेश्वर स्वरूप प्राणी थे जो पाप में जब गिर गए तो यीशु वापस आ गया ताकि वापस हमको परमेश्वर स्वरूप में ठहरा दे। Now I am about to say something, and if there are religious people here, you are going to get offended. मैं कुछ बोलने वाला हूं और अगर कोई बहुत ही धार्मिक लोग यहाँ हैं तो आप बहुत नाराज होने वाले हैं, But that's okay, पर कोई बात नहीं, because Jesus all the time offended religious people, क्योंकि यीशु हमेशा धार्मिक लोगों को नाराज करता था and I am like Him. और मुझे बहुत पसंद है वो, मैं उसकी तरह हूं। According to Jewish rabbis, यहूदी शिक्षकों के अनुसार they say when God created Adam, वो कहते हैं जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, Adam was made perfectly like God that even angels couldn't identify who's God and who's Adam. वो ये कहते हैं कि परमेश्वर ने आदम को हूबहू अपनी समानता स्वरूप में ऐसा बनाया था कि स्वर्गदूत भी पहचान कर फर्क नहीं कर सकते थे कि कौन आदम है कौन परमेश्वर। Yeah, I can see that. Some people, that's okay. I'm not saying Adam became God. Adam was completely like God, but he had to stay alive, he had to completely be dependent on God. मैं ये नहीं कह रहा कि आदम को परमेश्वर बना दिया, लेकिन आदम हूबहू परमेश्वर की तरह बनाया, लेकिन आदम को परमेश्वर पर निर्भर रहना था जीवित रहने के लिए। Amen? That's what made in his image and likeness means. उसकी समानता और उसके स्वरूप में बनाए जाने का ये अर्थ था। If the Bible would have just said that Adam was made in the image of God, अगर बाइबल कहती परमेश्वर ने आदम को अपनी छवि में बनाया, that's it. इतना ही लिखा And होता, Bible doesn't say likeness. और समानता ना लिखा होता, Then Adam would have been like a cheap Chinese copy of God, which looks like a genuine iPhone, but doesn't function like a genuine iPhone. अगर परमेश्वर ने सिर्फ उसकी तस्वीर के अनुसार आदम को बनाया था तो आदम परमेश्वर की एक सस्ती चाइनीज कॉपी होता जो दिखता तो आईफोन जैसा है पर काम नहीं करता आईफोन की तरह। Right? But do you know, whenever any company creates a car or a mobile phone or anything, they have first prototype. पर जब भी कोई कंपनी कोई कार कोई मोबाइल फोन बनाती है तो सबसे पहले एक मॉडल बनाती है, right? And according to that prototype, every other phone is made like that phone, like that phone. That all the phones that came from that prototype functions exactly like the first prototype. और वो जो पहला मॉडल जो पहला प्रोटोटाइप बना होता है उसकी बिल्कुल नकल करके वो बाकी सारे बनाती है जो भी मॉडल बनते हैं उसके हिसाब से। Are you getting what I'm saying? समझ रहे हैं? You know, last Sunday when I was teaching that Jesus was also bombarded with negative thoughts, we started getting comments. पिछले रविवार जब मैं बता रहा था कि यीशु को भी नकारात्मक विचार आते थे तो बहुत सारे अच्छे प्रेम भरे कमेंट्स आने लग गए। So we started getting comments on my Instagram. What are you trying? How dare you say that Jesus is like us? Are you trying to say that Jesus is like us? I said, yes. क्या कहना चाह रहे हो कि यीशु हमारी तरह है? मैंने कहा हाँ। He is not like us. We are like him. वो हमारी तरह नहीं, हम उसकी तरह हैं। Amen.
Even though he is God in flesh, even though he is Son of God, but he lived like Son of Man. हालांकि वो परमेश्वर और परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी एक साधारण इंसान की तरह जिया है. Amen. That's why Jesus was tempted. If Jesus could not get negative thoughts, then there was no temptation, because every temptation comes in the form of thoughts. और ऐसे ही मैं कहता हूँ कि यीशु परखा गया, वो परीक्षा में पड़ा, परीक्षा उसके विरोध में भी आई, क्योंकि नकारात्मक विचारों के द्वारा ही हमारे ऊपर भी परीक्षा आती है. Do you know why they crucified Jesus? आप जानते हैं उन्होंने यीशु को क्रूस पर क्यों चढ़ाया था? Why? क्यों? Because they said this man makes him equal to God. उन लोगों ने ये आरोप लगाया कि ये परमेश्वर के बराबर अपने आप को बता रहा है. And that's what they say to us. और यही है जो वो हमसे कहते हैं. I had gone to preach in a church, in a conference, and I was teaching how we are now seated with Christ Jesus in the heavenly places. और मैं कॉन्फ्रेंस में गया था सिखाने के लिए. वहाँ पर मैं बता रहा था कैसे हम मसीह यीशु के साथ सिंहासन पर बैठे हैं. And an old uncle got very irritated. और एक वृद्ध अंकल बहुत ही नाराज हो गए मुझसे. He said, "What are you trying to say? कहने लगे, क्या कहना चाह रहे हो तुम? Are we sitting at the same level with Jesus?" क्या हम यीशु के बराबर स्तर पर बैठे हैं? I said, "Yes." मैंने कहा जी. I didn't say that. The Bible says that. ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है. If you have a problem, talk to the Father who made us sit in heavenly places together with Christ Jesus. अगर आपको इस बात से आपत्ति है तो मुझसे नहीं, स्वर्गीय पिता से बात करें, जिसने हमें मसीह के साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बैठा दिया. Amen. Whatever the Father wanted in us, He put in Jesus. जो कुछ पिता हमारे अंदर चाहता था उसने वो सब यीशु में डाल दिया. Okay? Let me say that again. Okay. Whatever the Father wanted in us, He put in Jesus and made us joint heirs with Christ Jesus. जो कुछ पिता हमें देना चाहता था, जो कुछ वो चाहता था कि हमारे पास हो, वो सब उसने यीशु में डाल दिया और फिर यीशु के साथ हमें जोड़कर संगी वारिस बना दिया उस सब का. Oh man, there is so much to share, but I'll try to wrap it up in just like 4-5 hours. बहुत कुछ है बताने के लिए, पर मैं बस 4-5 घंटे में सब कुछ समेट लूंगा. The Bible says man was made in the image and likeness of God. बाइबल कहती है मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बना. It was like God pulled out a mirror. वो ऐसा था जैसे परमेश्वर ने एक शीशा खींचा, शीशा बनाया. You know, He kept a mirror in front of Him एक शीशा अपने सामने रखा and created Adam just like him. और आदम को बिल्कुल वैसा बना दिया जैसा वो शीशे में देख रहा था. But what do we pray? पर हम क्या प्रार्थना करते Oh हैं? Father, ओ पिता, हम पापी हैं, हम मिट्टी हैं, हम कीड़े हैं. we are sinners, we are dust, we are worms. You need to know the gospel. आपको सुसमाचार जानना जरूरी है. Say, Lord, बोले प्रभु, deliver me from this religion called Christianity. मुझे ईसाई धर्म से आजादी दे दो प्रभु. Oh, some Christians are getting offended. कुछ मसीह लोग नाराज होने वाले हैं. All right. 1:26, Genesis 1:26. उत्पत्ति 1:26. We'll read from NLT. Are you ready? All right. Then God said, "Let us make human beings in our image to be like us." और परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपनी स्वरूप में बनाएं ताकि वो हमारे जैसा हो. Religion is man trying to become like God. धर्म ये है जब मनुष्य परमेश्वर के जैसा बनने की कोशिश करता When है. you're trying to fast more to be like Him, when you're trying to do all the religious activities to be like Him, that's religion. And religion was introduced by serpent in the garden. जब हम प्रयास करते हैं कि हम ज़्यादा उपवास या ज़्यादा धर्म कर्म के कामों को कर कर परमेश्वर जैसे हो जाएंगे, वो धर्म है. और धर्म का जो पहला परिचय जिसने कराया वो सांप था, वो शैतान था. It's not your works that make you like God. It's your birth. Birth.
आपके काम आपको परमेश्वर जैसा नहीं बना सकते, आपके जन्म ने आपको परमेश्वर जैसा बनाया है। I am tall because my dad is tall. I didn't call two people to stretch me from my legs and stretch my hands so that I'll be tall. Because to be tall was in my DNA. मेरी हाइट लंबी है क्योंकि मेरे पिता की हाइट लंबी है। मैंने दो लोग को नहीं बोला कि मेरे सर और पाँव से मुझे खींचो ताकि मैं लंबा हो जाऊं। लंबा होना मेरी बनावट में छुपा हुआ था। I look like my dad because I am born from him. मैं अपने पापा जैसा नजर आता हूं क्योंकि मैं उनसे पैदा हुआ हूं। Amen. So what makes you like God is your birth. तो जो आपको परमेश्वर जैसा बनाती है वो बात आपका जन्म है। And that's what salvation is. और ये है उद्धार। Salvation is not just forgiveness of sins. उद्धार सिर्फ पापों की क्षमा नहीं है। Yes, forgiveness of sins is included in the package. हाँ, पापों की क्षमा उस पैकेज का हिस्सा है। But salvation means to be born of God. लेकिन उद्धार का अर्थ है परमेश्वर से पैदा होना। And some people say, "Oh, brother, you're going to lose your salvation." I want to ask them, if you are born, how can you be unborn? और If you are born of God, how can you be unborn of God? और कुछ लोग कहते हैं कि अरे भाई ऐसा करोगे तो अपने उद्धार से हाथ धो बैठोगे। मैं कहता हूं अगर आप पैदा हो गए तो पैदा ना हो जाओ के लिए क्या कर सकते हो? I mean, like, now whatever I do, I look like my dad. I am tall. I cannot change that. अब My works cannot change who I am. मैं जो कुछ भी क्यों ना कर लूं, मैं अपने पापा जैसा नजर आऊंगा, उनके डील डॉल उनकी कद काठी में होऊंगा। मेरे कामों से मैं जो हूं वो नहीं बदलेगा। Are you guys getting it? My works cannot change who I am, but who I am can change what I do. मेरे कामों से जो मैं हूं वो नहीं बदल सकता, लेकिन जो मैं हूं वो मेरे कामों को प्रभावित करेगा। All right. So when God said to be like us, let us make human beings in our image to be like us. परमेश्वर ने जब कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए ताकि वो हमारी तरह हो, so that they can worship us all eternity. ताकि वो अनंत तक हमारी आराधना करता रहे। Some of you are saying amen. No. That's not in the scripture. आप में से कुछ आमीन बोल रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है, वचन में ऐसा नहीं लिखा है। Yes, we do worship him. हाँ, हम उसकी आराधना करते But हैं, we were not created to worship. लेकिन इसलिए नहीं बनाया था परमेश्वर ने हमें कि हम उसकी आराधना करें। It was not God was getting bored in heaven. ऐसा नहीं है परमेश्वर बैठ के बोर हो गया था स्वर्ग में। God is not like that old kings. जब गवैये बुलाते थे, चलो शुरू हो जाओ। No. He wanted kids. He wanted children that are like him. Like him. परमेश्वर उन पुराने राजाओं की तरह नहीं है, who would call singers and say now sing something for me। वो राजा है, वो पिता है जिसने बच्चों को बनाया क्योंकि वो बच्चों को चाहता था। So I was not created so that I can worship God all the time. Although I love to do that and we will do that. But what I'm saying is we were created to be loved and to function like God. Let me say that again. We were created to be loved and function like God. Let me say that again. We were created to be loved and to function like God. हाँ, हम उसकी आराधना करते हैं, लेकिन जिस कारण उसने हमें बनाया वो ये था कि वो हमसे प्यार करे और उसकी तरह हम काम करें। वो हमसे प्यार करे और हम उसकी तरह जिएं, इसलिए उसने हमें बनाया। तीसरी बार नहीं बोलोगे? अच्छा। वो हमसे प्यार करे और हम उसकी तरह काम करें। Amen. And what did he say? The first thing when he said they will be like us, what is the second line? They will reign. और दूसरी बात जब उसने बनाने की कही तो उसने क्या कहा कि वो राज करेंगे। They will reign. वो राज करेंगे। They will reign. वो राज करेंगे। Over the fish of the sea, over the birds of the air, over every creeping thing that creeps on the face of the earth. समुद्र की मछलियों पर, पक्षियों पर, सारे जीव जंतुओं पर, हर एक बात, हर एक जानवर जो रेंगता है पृथ्वी पर उसके ऊपर। Amen. Everything that creeps, everything that moves on the face of the earth. हर एक चीज जो रेंगती या हिलती चलती है पृथ्वी पर। If you see on a microscope, every deadly virus moves. अगर Cancer moves.
And we are called to reign over everything that moves on the face of the earth. अगर ध्यान से माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हर एक जानलेवा वायरस हिलता डुलता है, कैंसर हिलता डुलता है। हमें परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि हम हर एक हिलने डुलने वाली चीज के ऊपर प्रभुता और राज्य करें। Amen? It is in your DNA to overcome everything that comes against you. ये हमारी बनावट में है कि हम हर बात को हरा दें, उस पर जय पाएं जो हमारे विरोध में। You know, one time I was watching National Geographic and they were showing these Bengal tigers. एक बार मैं नेशनल ज्योग्राफिक देख रहा था और वो बंगाल टाइगर्स दिखा रहे थे उसमें। Right now they are very ferocious. वो बहुत खूंखार होते हैं। But a family adopted them. एक परिवार ने एक बंगाल टाइगर को घर पे रख लिया And he became their pet. वो उनके पालतू की तरह हो गए, छोटे से ही। And the problem is the Bengal tiger started identifying himself as a dog. और समस्या तब हो गई जब वो बंगाल टाइगर उनके वो जिस परिवार में वो था उनके कुत्ते की तरह व्यवहार करने लगा। Yeah, because they had dogs. क्योंकि उनके पास कुत्ते भी थे। And because he was playing around with dogs, he thought he's a dog. वो सारा दिन कुत्तों के साथ खेलता था, उसको लगा वो भी कुत्ता है। Yeah, I'm going somewhere. मैं कहीं जा रहा हूँ। Right? Now, after a while, that tiger grew very big and it was very difficult for that family to take care of him. और कुछ समय बाद वो इतना बड़ा हो गया वो टाइगर के उस परिवार के लिए मुश्किल हो गया उसको संभालना। And they thought we'll just let him loose in the jungle. उन्होंने सोचा इसको हम जंगल में छोड़ाएंगे। However, the problem was बस समस्या ये थी he didn't know how to hunt. उसको शिकार करना नहीं आता था। If they would have let him in the jungle, this ferocious lion, which became like a dog, would have not survived a day. अगर उसको जंगल में छोड़ देते तो वो खूंखार टाइगर जो जिसको हंट करना चाहिए था लेकिन वो एक दिन भी ना जी पाता। So they thought, okay, first we'll let him hunt an ostrich. तो उन्होंने कहा ठीक है पहले हम इसको ऑस्ट्रिच का शिकार करने देंगे। Right? And they put him in a field and they let loose an ostrich. एक फील्ड में उसको ले जाके छोड़ दिया और ऑस्ट्रिच को छोड़ दिया वहाँ पे खुला। And he got super terrified, ran in the corner and covered his eyes. तो वो भागते हुए कोने में जाकर अपनी आंखें ढक कर बैठ गए। Why? क्यों? Because that tiger wasn't aware of who he was. क्योंकि वो टाइगर नहीं जानता था कि वो टाइगर है। Pastor, I'm so afraid of darkness. पास्टर जी मुझे अंधकार से बहुत डर लगता है। You need to know who you are. आपको पता होना चाहिए आप हो कौन। Because the day you know who you are, जिस दिन आपको पता लग गया आप कौन you हो, will not be afraid of darkness because the darkness is afraid of the sons of light. Sons of light, that's what Bible calls us. जिस दिन आपको पता लग गया आप कौन हो, आप अंधकार से डरोगे नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है कि अंधकार ज्योति के पुत्रों से डरता है और बाइबल हमें ज्योति के पुत्र कहती है। Amen? आप सबको जय मसीह की। मुझे आशा है कि आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हमारे अपोस्टल अंकित साजबन जी ने आपको और हमें सबको समझाया बताया कि हमें वचन की ताकत कैसे लेनी है, वचन के द्वारा हमें अपने जीवन को कैसे बदलना है, अपनी किस्मत को कैसे बदलना है। इसलिए आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, इससे आपको बहुत सीख मिली होगी। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।